Let us see the next question. Again, a new concept. Excel Limited has made an issue of 14%. Highlight the portion non-convertible debenture on 1st of January 2016. These debentures have a face value of rupees 100 and currently traded in the market at a price of rupees 90. तो P0 दे रखा है 90 rupees. Interest on these non-convertible debentures will be paid through PDC, post-dated checks, dated 30th of June and 31st of December. Interest payment for the first 3 years will be paid in advance through PDC, post-dated checks, while for the last year, PDC will be issued at the end of the third year. Bond is redeemable at par on 31st of December 2019 at the end of the 4 years. You are required to calculate, highlight the portion, realized yield on non-convertible debenture, assuming that intermediate coupon payments are not available for reinvestment. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये नया कॉन्सेप्ट कैलकुलेट किया जाएगा, which is given a name as realized yield. Let us have understanding of this new concept. This new concept is about the calculation of the realized yield. Non-convertible debenture means simple debenture, what we usually discuss. Dear students, over here the question is providing the information that you are required to compute the realized yield. What does it mean? Dear students, it means that the calculation of modified internal rate of return. Yes. Modified internal rate of return is a concept that say we study at our second level, in which we have a concept like this. I am giving you a detailed explanation for the modified internal rate of return, which is nothing else but it is the realized yield, say over here. See, if at all I take some simple values to give you explanation. We purchase a security, let us say for an amount of rupees 1000 in year 0. First year, second year, third year, for 3 years I get the interest income. Suppose interest मुझे मिलता है 100 रुपए का, इंटरेस्ट मुझे मिलता है 150 रुपए का, इंटरेस्ट मुझे मिलता है 200 रुपए का, उसके साथ साथ मेरे को रिडम्पशन वैल्यू मिलता है लेट अस से 1100 रुपए का, एंड से इंक्लूडिंग द रिडम्पशन वैल्यू मुझे 1300 रुपीज थर्ड ईयर के एंड में मिलता है. Now, let us say that we are supposed to make the calculation of the internal rate of return for this cash flow series. And IRR of this cash flow series is, let us say, 16%. मैं ऐसे ही एक assume figure ले रहा हूँ. तो 16% is the rate at which we are getting return, say, of this investment. ना जब हम लोग IRR 16% कैलकुलेट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें एक ऐसा assumption होता है कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल है उसको हम लोग रिमेनिंग 2 इयर्स इन्वेस्ट कर पाएंगे एट द रेट ऑफ 16%. हमारा सेकेंड ईयर का कैश अक्रूवल है उसको हम लोग री इन्वेस्ट कर पाएंगे एट द रेट ऑफ 16%. और ये तो थर्ड ईयर का कैश फ्लो ही है. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट वी आर हैविंग एन assumption that internal cash accruals can be reinvested at IRR rate that is 16%. सपोज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा करते हैं कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लेट अस से 9% है सपोज, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि IRR इज एक्सीडिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सो इनफैक्ट ऐसा है कि आपका री इन्वेस्टमेंट का रेट है 9%. In spite of that, say you make the calculation of the return using 16% as the reinvestment rate. That is the limitation of the normal IRR calculation. I'm giving explanation once again to you along with some calculations that will give you more clarity. Suppose कि एक कैश फ्लो सीरीज है जिसमें ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो है 950.
एंड ऑफ ईयर 1 का इनफ्लो है 100 रुपए, एंड ऑफ ईयर 2 का है 130, और एंड ऑफ ईयर 3 का है 1380. Let us say that this is the cash flow on year 0 to year 3, and इसका IRR है 21.03%, एंड IRR मैंने कैलकुलेट किया है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इन्वेस्टर का सपोज की 9%. तो लिसन केयरफुली, IRR क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपको 21.03% का रिटर्न मिल रहा है. अगर उनको बोलेंगे भी आप प्रूव करके दो कि 21.03% का रिटर्न मिल रहा है, तो IRR क्राइटेरिया का कहना ऐसा है कि अगर आपने 950 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया होता एट द रेट ऑफ 21.03% फॉर 3 years, तो आपको थर्ड ईयर के एंड में क्या मिलता वो चेक करो तो 1.210323. So it is 1.7729. आपको थर्ड ईयर के एंड में मिला होता ₹1684.26. यानी अगर आपने 950 21.03% 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपको ये वैल्यू मिलता. Now instead of investing 900 rupees 950 rupees somewhere else, you invest in this security. तो भी आपको थर्ड ईयर में इतना ही पैसा मिलेगा. कैसे, चलो चेक करते हैं. तो देखो, फर्स्ट ईयर में हमको मिलेगा 100 रुपए, उसको री इन्वेस्ट करते हैं, तो 100 रुपए इंटू 1.2103 रेज टू 2, so 146.84, sorry 146.48. सेकेंड ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में 130, उसको अगेन री इन्वेस्ट करो, 130 इंटू 1.2103 रेज टू 1, so 157.34. थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो कितना है 1380. उसको तो कोई भी कंपाउंड करने का जरूरत नहीं है, तो 146.48 प्लस 157.34 प्लस 1380, so that comes to 1683.82. अप्रोक्सीमेटली सेम है, थोड़ा वो मार्जिनल डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने वो जो इंटरपोलेशन हम लोग करते हैं उसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन रहता है. सो ओवर हियर वी अंडरस्टैंड दैट IRR क्राइटेरिया का कहना ऐसा है, IRR क्राइटेरिया का कहना ऐसा है that you get a return at the rate of 21.03% subject to the condition that internal cash accruals are reinvested at 21.03%. ऐसा हम लोग समझते हैं. सो बेसिकली क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे द IRR क्राइटेरिया इज सफरिंग फ्रॉम अ मेजर लिमिटेशन that it assumes that so the internal cash accruals can be reinvested at IRR rate. Okay, how can you overcome that? तो भी ऐसा है, that is a modified version of the IRR, pro version जैसा modified IRR. उसमें क्या किया जाता है, जो भी इंटरनल कैश अक्रूवल्स है ना उसको री इन्वेस्टमेंट रेट से री इन्वेस्ट किया जाता है. जैसे कि सपोज कि यहाँ पे हमको मॉडिफाइड IRR फाइंड करना है, तो क्या किया जाता है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब ये अज्यूम फिगर्स है, 100 रुपए 130 रुपए और 1380. इसको 9% से कंपाउंड करेंगे फॉर 2 years, इसको 9% से कंपाउंड करेंगे फॉर 1 year, एंड दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंपाउंडिंग. ठीक है ना, वाई, बिकॉज ओवर हियर वी अंडरस्टैंड दैट से the 9% is the cost of capital. So 1.09 का square into 100, so 118.81.
130 into 1.09, 141.7 और फिर 1380. So 118.81 plus 141.7 plus 1380, 1640.51. ये हमको कब मिलेगा? ईयर 3 एंड. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. ओके, तो हमको ऐसा पता चला यहाँ पे कि हमको थर्ड ईयर के एंड में 1640.51 मिलेगा, कंसीडरिंग कि ये इंटरनल कैश एक्रूअल करेक्ट रेट से री इन्वेस्ट हुए हैं. 950 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आज किया, थर्ड ईयर के एंड में हमको मिलेगा 1640.51. सो व्हाट इज द रेट एट विच वी आर गेटिंग रिटर्न विल बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर. इस हिसाब से कि आज 950 रुपीज इन्वेस्ट करने से थर्ड ईयर के एंड में मिलेगा 1640.51. सो व्हाट इज द रेट एट विच वी आर गेटिंग रिटर्न is supposed to be calculated as balancing figure. So let us now go back to the question. ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है. सिक्योरिटी है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी सिंपल डिबेंचर है और कुछ नहीं है. कन्वर्टेबल नहीं है तो यूजुअली दैट इज कन्वर्टेबल होता भी नहीं है. जब तक कन्वर्टेबल दे नहीं रखा हम लोग अज्यूम कहां से करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से 14%, इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली, फेस वैल्यू दे रखा है, प्राइस दे रखा है, रिडम्पशन वैल्यू दे रखा है, एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन कि इट वाज इश्यूड ऑन 1st of January 2019, sorry 2016, and it will be redeemed on 31st of December 2019. 16, 17, 18, 19, यानी क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इज 4 years. ऐसा हम लोग समझते हैं. ओके, नाउ अगर हम लोग तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी. पर यहाँ पे इंपॉर्टेंटली क्या दे रखा है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंटली हमको दे रखा है दैट री इन्वेस्टमेंट रेट इज 0. ये देखो यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है दैट assuming that intermediate coupon payments are not available for a reinvestment, ऐसा दे रखा है. ओके, यानी ये जो मैंने आपको ये क्वेश्चन जब समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, उस पे ये जो 9% है ना, वैसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? इट इज 0. तो उस केस में रियलाइज यील्ड कितना होगा? दैट इज अ क्वेश्चन. यानी कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? दैट इज अ क्वेश्चन. तो यहां पे भी आंसर कैसे करने का वो भी हम लोग समझते हैं. बिफोर दैट से वी राइट अ स्मॉल नोट. हेडिंग राइट डाउन रियलाइज यील्ड. मेरा रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट्स को कि जब आप लोग नोट लिखो तो साथ साथ में समझते जाओ कि ये नोट कैसे सर ने लिखवाया है. कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए नोट लिखने के साथ साथ. डोंट राइट द नोट, दैट से लेटर ऑन मेरे को ये हेल्प करेगा. अभी ही आपको ये समझ में आना चाहिए. राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट. रियलाइज यील्ड is similar to modified internal rate of return. Second point, नॉर्मल IRR ब्रैकेट में लिखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न स्लैश यील्ड ब्रैकेट में लिखो रिटर्न assumes that
internal cash accruals are reinvested at the rate IRR. However, reinvestment at the rate IRR may not be possible. Full stop. In that case, we can find modified IRR slash realized yield to overcome limitation of reinvestment rate. Full stop. Third point, over here, internal cash accruals are reinvested at the rate cost of capital slash opportunity cost of investor slash capitalization rate. Full stop. With paragraph read down, taking into account initial investment and future value of internal cash accrual, we can find MIRR slash realized yield. Now friends, ये क्वेश्चन में I just want to you to tell me what must be the answer of realized yield or modified IRR considering the information given. थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, but still I want to experiment with all of you. So friends, over here we can compute the answer like this. Interest income plus redemption value. See, the face value of the security is 100. Rate of interest is 14%. Interest is paid half yearly. This is the interest income for the first 6 months. 100 into 14% divided by 2, that comes to 7 rupees. And we are going to receive interest for 8 times. So it is 4 years into 2. That comes to 56. Plus redemption value.
This is what we understand is like a kind of working note number one, calculation of future value of internal cash accruals. It is very simple like this. सर क्यों ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, दैट से द इंटरमीडिएट कूपन पेमेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द री इन्वेस्टमेंट। यानी क्या होगा, इन शॉर्ट हमको ऐसा दे रखा है दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. So what we are supposed to do? We are just supposed to make the computation of the total amount that say we are going to receive. हमको जितना भी टोटल अमाउंट मिलने वाला है वही का वही क्या हो जाएगा, वही का वही फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल हो जाएगा. That is the way we are supposed to make the calculation of the first answer. At the same time I am telling you friends, suppose कि ऐसे मैं बता रहा हूँ, सपोज कि हमको दे रखा होता कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर इज लेट अस से 8%. तो बेसिकली क्या होता फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से ये 7 रुपीज का इंटरेस्ट है. लेट मी टेक दिस एज 9%. ये इंटरेस्ट इनकम 7 रुपीज का है इंटू FVIFA एट द रेट ऑफ 4.5% फॉर 8 पीरियड्स, प्लस क्या करेंगे रिडम्पशन वैल्यू ऑफ 100. That is the way we are supposed to make the calculation. See what happens at say we have to understand at say 9% पूरे साल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो हाफ ईयरली कितना होगा 4.5%. तो 7 रुपीज जो हमको हर 6 महीने के बाद मिलेंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 4.5% फॉर 8 पीरियड. तो उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको मिलेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल. साथ साथ में हमको लास्ट ईयर में क्या मिलेगा, हमको 100 रुपीज का इंटरेस्ट दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा. दैट इज द वे द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल इज सपोज टू बी फाउंड. अगर हमको री इन्वेस्टमेंट का इंफॉर्मेशन दे रखा होता तो, बट यहाँ पे नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगा. Just explaining one more point further that by using this FVIFA formula, how we can say make the calculation of the answer. For that, I am taking some simple values. Suppose over here, the time period is 2 years. I am just say trying to explain this FVIFA formula. Suppose the time period is 2 years, then number of times interest received is 4. कैसे 2 years into 2, तो उसमें क्या किया जाएगा, पीरियड 1 2 3 4 4 पीरियड है, 7 7 7 7. जो फर्स्ट 7 रुपीज है उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग एट द रेट ऑफ 4.5%. तो क्या होगा 7 इंटू 4.5%, that comes to 0.315. Now इनिशियल 7 था वो प्लस एडिशनल 7 और ये 0.315, इन सबको हमने री इन्वेस्ट किया तो वी गेट 14.315 इंटू अगेन 4.5%, सो 0.6442. 7 रुपीज 3 बार प्लस 0.315 प्लस 0.6442, सो कुल मिला के 21.9592 इंटू 4.5%, so 0.9882. You receive 7 rupees for 4 times, that comes to 28. Then you receive 0.315, 6442, 9882.
सो यू गेट 1.9474। तो आपका मेच्योरिटी क्या आएगा 29.9474। ये एकदम डिटेल में आंसर है ना। उसी को अगर हमको थोड़ा शॉर्ट में लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द FVIFA फॉर्मूला 7 into FVIFA at 4.5% फॉर 4 पीरियड। 4.5% क्यों सर? क्योंकि 9% पूरे साल का है तो हाफ ईयरली का होगा 4.5। 7 into FVIFA का बहुत सिंपल फॉर्मूला है 1 + i⁻n−1 डिवाइडेड बाय i। 7 into 1.05 raised to 4-1 divided by 0.045. So it is 1.045234. So it is 1.045 into 234 minus 1 divided by 0.045. तो देखो आंसर क्या आएगा 7 into 4.2782 4.2782 into 7 that comes to 29.95। तो ये जो हमारा आंसर था वही का वही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरनल कैश एक्रूवल का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, जिसमें इंटरेस्ट इनकम को ऐड करना है और रिडम्पशन वैल्यू को ऐड करना है। एंड दिस इज व्हाट्स द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव से ईयर 4 एंड। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से modified internal rate of return, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, P0 यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट I फॉर 4 years, क्योंकि 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरनल कैश एक्रूवल्स। P0 यानी कि सिक्योरिटी को आज खरीदेंगे तो क्या प्राइस पे खरीदेंगे, 90 रुपए में खरीदेंगे। दिस इज द प्राइस एट विच वी बाय। क्या करेंगे, इनटू 1 + i⁻⁴ is equal to future value of the internal cash accrual is an amount of 156. So 1 + i is equal to 156 upon 90। उसका क्या करेंगे, उसका 4th रूट करेंगे, सो होल रेज टू 1/4। So we understand 156 upon 90, so it is 1.73333, उसका रूट करेंगे 2 टाइम्स के लिए, so it is 1.1474, उस पे से 1 डिडक्ट किया जाएगा, so it is 0.1474। that is 14.74%. This is the realized yield. Please write down answer. फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम पीरियड एग्जैक्टली 4 years है, इसलिए अंडर रूट फॉर 2 टाइम्स से आंसर आ गया। अगर टाइम पीरियड 3 साल होता, टाइम पीरियड 5 साल होता, तो हमको इंटरपोलेशन मेथड से आंसर करना पड़ता। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर द रियलाइज्ड यील्ड इज 14.74%, considering the intermediate coupon payments are not available for reinvestment. So let us have a summary of this question. ये क्वेश्चन में दे रखा है एक सिक्योरिटी है जिस जो डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इज सिंपल डिबेंचर ओनली। रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का पेमेंट है सेमी एनुअली। एब्सोल्युटली मिसगाइड करने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखे। इंटरेस्ट इज पेड थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स। अरे भाई, पोस्ट डेटेड चेक देने से मेरे को पैसा तो नहीं मिल जाता है। पोस्ट डेटेड चेक देने का मतलब ही नहीं है डेटेड 30th June एंड 31st December, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द फर्स्ट 3 years विल बी पेड इन एडवांस थ्रू PDC।
पीडीसी एन कैश कब होने वाले हैं? वो तो जिस दिन का पीडीसी होगा उसी दिन एन कैश होगा. फॉर द लास्ट ईयर पीडीसी विल बी इशूड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिसगाइड करने के लिए दे रखा है. सो डेफिनेटली यू आर टू बी केयरफुल दैट से यू आर नॉट लाइक कंफ्यूज विद दिस काइंड ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है. पीडीसी इज लाइक नथिंग. ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअली, फेस वैल्यू दे रखा है, प्राइस दे रखा है, रिडम्पशन वैल्यू दे रखा है, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और इंपॉर्टेंटली री इन्वेस्टमेंट रेट 0 है. सबसे पहले हमने ऐसा समझा कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. उसमें क्या किया जाता है कि जो भी इंटरनल कैश अक्रूवल्स है दैट इज री इन्वेस्टेड से एट द रेट ऑफ IRR, ऐसा ये जो बेसिक अजम्पशन है ना, वो उसका लिमिटेशन है. एक क्वेश्चन का मैंने आपको IRR है 21.03%, वो कैसे वो लोग प्रूव करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया. वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको IRR का जितना रिटर्न मिलेगा कब, जब इंटरनल कैश अक्रूवल सी रेट से री इन्वेस्ट होंगे, पर एक्चुअली उतना री इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द लिमिटेशन ऑफ द IRR क्राइटेरिया. सो क्या किया जाता है, जो भी मॉडिफाइड IRR के लिए जो भी इंटरनल कैश अक्रूवल से उसको गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपाउंड किया जाता है, एंड विद दैट से वी गेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश अक्रूवल एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. हमने आज जितना इन्वेस्टमेंट किया, थर्ड ईयर में हमको क्या मिलेगा से वो हमने कैलकुलेट करके रखा है. सो नाउ से इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द रिटर्न दैट से यू आर एबल टू गेट. तो ऐसा करके ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन होता है. मैंने उसका नोट लिखवाया, फिर हम लोग ये क्वेश्चन के ऊपर आए. ये क्वेश्चन में ऐसा है दैट से इंपॉर्टेंटली से द इंटरनल कैश अक्रूवल इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी री इन्वेस्टमेंट. यानी इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट से आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इग्नोर करना है. आपको 7 रुपए का ब्याज मिलेगा कितनी, 8 बार, तो वो 56 वैल्यू हो गया, सिंपल. उसको हमें कंपाउंड नहीं करना है. और ये 100 रुपीज किस दैट इज कब मिलेंगे, जब सिक्योरिटी रिडीम होगा. तो ये 156 रुपीज हमको कब मिलेंगे, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर. फिर मैंने आपको सिर्फ समझाया कि सपोज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा होता 9%, तो हमको क्या करने का, इंटरेस्ट इनकम को 4.5%, 4.5 क्यों, 9 का आधा, फॉर 8 पीरियड कंपाउंड करने का. 8 कैसे, 4 ईयर्स इंटू 2. रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपए है, उसका मैंने थोड़ा डिटेल आपको समझा दिया. FVIFA का फॉर्मूला का डेरिवेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं और फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल, उसका है वर्किंग. उसके बाद मॉडिफाइड IRR का कैलकुलेशन. मॉडिफाइड IRR जिसको हम लोग रियलाइज यील्ड भी बोल सकते हैं. यहाँ पे टेक्निकली इट इज रियलाइज यील्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही का वही है. आज हमने इन्वेस्टमेंट किया 90 रुपीज, हमको क्या मिला 156, कब, फोर्थ ईयर के एंड में. सो व्हाट इज द रेट एट विच यू आर गेटिंग रिटर्न इज 14.74%. ऐसा हम लोग समझते हैं. दिस इज द वे द न्यू कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड.